بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم جو ناول سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے دیار گل، اور اس کو لکھا ہے ہبا خالد نے۔ امید ہے آپ کو یہ ناول پسند آئے گا۔ ناول شروع کرنے سے پہلے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو لائکس اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ دیار گل، از قلم ہبا خالد۔ کسی پر ٹھہرے ہوئے وقت کے حصار میں وہ شخص، شہزادی کو بچانے تو ہمیشہ شہزادے آتے ہیں، مگر کیا شہزادے کو بھی کوئی بچاتا ہے؟ کہانی ایک شہزادے کی۔ دنیا کے اس دیوار کے سامنے وہ اب تک کھوکھلا وجود لیے کھڑا، دیوار کے خود پر گرنے کا انتظار کرتا ہے۔ اس کے پاس امید کی کوئی کرن بھی باقی نہیں تھی۔ وہ اس دیوار کے نیچے آ کر کچلا جانا چاہتا تھا، مگر پھر کیا ہوا جو وہ اس دیوار سے بچ نکلا تھا؟ اسے تو نہیں بچنا تھا، مگر وہ ایک دیار گل جو اس دیوار کے اوپر ابھرا تھا۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ بادلوں میں چھپا سورج ابھی ٹھنڈا تھا۔ پشاور کے مقیم اب گھروں سے باہر آ رہے تھے۔ سبھی اپنے کاموں کی طرف بڑھ رہے تھے۔ صبح کے 7 بج رہے تھے اور حیات آباد اب جاگ رہا تھا۔ حیات آباد کی گلیاں ایک بار پھر گنجان آباد ہو رہی تھیں۔ تبھی وہ 13 سالہ لڑکا لوہے کا دروازہ کھول کر باہر نکلتا ہے اور دروازے کی باہر سے کنڈی لگاتا نچلی روڈ پر چل پڑا۔ وہ صاف دھلے ہوئے یونیفارم کے ساتھ بیگ کندھے پر ڈالے آگے بڑھ رہا تھا۔ اس کے دماغ کے پردوں میں ابھی تک وہ چیخیں گونج رہی تھیں۔ وہ ان کو اپنے اندر کسی ویرانے میں دبائے گردن جھکائے سیدھا چلتا گیا۔ آنسو اس کی آنکھ سے لڑک کر ایک گال پر آیا تھا۔ اے خبیث عورت، تو نے کبھی کوئی کام ڈھنگ کا بھی کیا ہے؟ اس کے دماغ میں دل سوز آواز ایک بار پھر گونجی تھی۔ اسکول میں وہ غائب دماغ بیٹھا کھڑکی سے باہر خالی گراؤنڈ کو دیکھتا رہا۔ تمام وقت وہ نڈھال سے بیٹھا رہا تھا اور پھر ویسے ہی بستہ کندھے پر ڈالے واپس آیا تھا۔ یہ اب اس کا روز کا معمول بن چکا تھا۔ وہ اسکول میں سارا دن خاموش بیٹھا رہتا تھا اور اس نے کوئی دوست تک نہیں بنایا تھا۔ پڑھائی میں وہ شروع سے ہی قابل تھا۔ اس کی ذرا سی محنت پر پوزیشن آ جاتی تھی۔ وہ نہ صرف پڑھائی بلکہ غیر نصابی سرگرمیوں میں بھی بہت آگے تھا۔ وہ 10 سال کی عمر سے تقاریر کر رہا تھا۔ اس کے کمرے میں صرف ایک دیوار ٹرافی اور میڈل سے سجی تھی، مگر اب وہ بڑا ہو رہا تھا۔ اس کی فکر کا مرکز اب اس کی ماں تھی۔ وہ اپنی ماں کے لیے بہت حساس تھا۔ گھر آیا تو کنڈی اب کھلی تھی۔ اس نے اندر جانے سے پہلے 2-3 گہرے سانس لیے، پھر اپنی ہمت جمع کرتے ہوئے دروازہ کھولا اور اندر آ گیا۔ آتے ہی وہ دائیں بائیں دیکھے بغیر اپنے کمرے کی طرف بڑھنے ہی لگا تھا جب اسے وہ آواز سنائی دی۔ ادھر آ منوس، کدھر جا رہا ہے تو؟ اس کا گلا ایک دم سوکھ گیا تھا۔ اس کے بڑھتے قدم ساکت ہوئے تھے۔ اس نے آنکھیں میچ کر بہت سے آنسو اپنے اندر اتارے تھے۔ وہ واپس مڑ کر قدم قدم چلتا اس کے پاس آیا تھا۔ اس کی گردن جھکی تھی۔ آ گیا تو پڑھائی میں تیر مار کر، ہاں؟ اس نے نظروں کا رخ اپنے پاؤں کی طرف ہی رکھا تھا۔ ہاں بول، کدھر چھپایا اپنی ماں کو؟ اس نے پہلو میں گرے ہاتھوں کی مٹھی بند کی تھی۔ اس کے گلے کی رگیں غصے سے ابھر آئی تھیں۔ بولتا ہے یا لگاؤں ایک؟ اس نے اب کی نظریں اٹھا کر اپنے باپ کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ نہیں، میں نہیں بتاؤں گا۔ تبھی اچانک اس کے منہ پر ایک زوردار تماچا پڑا اور وہ یک دک سا کھڑا رہا تھا۔ وہ جانتا تھا اب یہی ہونا تھا۔ وہ کبھی اپنی ماں کو نہیں بچا پایا تھا۔ اس انسان نے اس کی اور اس کی ماں کی زندگی تباہ کر دی تھی۔ یہ اس لڑکے کا باپ تھا۔ بدقسمتی سے جوئے میں پیسے اڑا کر شراب کے نشے میں دھت جب وہ آتا تھا تو اپنی بیوی کو مارتا۔ وہ اس کونے میں سیڑھیوں کی اوٹ میں بیٹھا سہما رہتا، بے بس اور کمزور محسوس کرتا تھا۔ ماں اسے ہمیشہ شام کو چھت پر چلے جانے کا کہتی تھی۔ جانتی تھی کہ نشے میں اس کا باپ سیڑھیوں کی طرف نہ جاتا تھا، مگر وہ اپنی ماں کی چیخوں کی آواز سے رہ نہ پاتا اور نیچے سیڑھیوں میں آ جاتا تھا، مگر آگے وہ ڈر کے مارے ایک قدم بھی نہ بڑھا سکتا۔ اس کا باپ بے رحمی سے سلمیٰ کو مار رہا ہوتا تھا۔ اس معصوم کے سامنے یہ منظر 3 سال کی عمر سے چل رہا تھا۔ آج وہ 13 سال کا ہو گیا تھا۔ جب سلمیٰ کی رئیس سے شادی ہوئی تھی تو سلمیٰ کے ماں باپ نے اسے زیور زمین اور بہت سے پیسے دیے تھے۔ وہ لوگ ایک کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ رئیس کے گھر والوں نے سلمیٰ اور اس کے والدین کو رئیس کی شراب اور جوئے کی لت سے بے خبر رکھا تھا اور ان کے ساتھ دھوکہ کیا تھا۔ شادی کے بعد سے آئے دن وہ سلمیٰ سے بہانے سے رقم لے کر جاتا تھا اور اپنی تنخواہ سے واپس کرنے کا جھوٹ موٹ وعدہ کرتا تھا۔ ایسا کرتے کرتے اس کے سارے پیسے ختم ہو گئے تو وہ اب اس کے زیور چوری چھپے بیچنے لگا تھا۔ جب سلمیٰ نے اسے رنگے ہاتھوں زیور اٹھاتے ہوئے پکڑا تو وہ معافی مانگنے لگا کہ وہ مجبور ہے۔ پھر سلمیٰ کے والدین کی ایک حادثے میں وفات ہو گئی اور اس کے بعد سے وہ شیر بن گیا تھا۔
کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اب تو مجبوری کے عالم میں سلمیٰ کو اسی کے ساتھ رہنا تھا۔ اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے اس کے ماں باپ کے گھر کے کاغذات پر بھی زبردستی سلمیٰ کے سائن لے کر اس گھر کو بیچ کر اپنے دھندے میں لگا دیا۔ اب وہ اس کے سامنے ہی زیور لے جاتا، وہ روکنے کی کوشش کرتی تو اسے مارتا اور تشدد کرتا۔ سلمیٰ کو وقت کے ساتھ ساتھ دمہ ہو گیا تھا، جو اب ٹی بی کی شکل اختیار کر گیا تھا۔ وہ اپنی بیماری سے لڑتی، سلائی کڑھائی کر کے اپنے بیٹے کو گورنمنٹ اسکول میں پڑھا رہی تھی۔ اس کا باپ اب دوسری شادی کر چکا تھا اور وہ ان کو گھر سے نکلنے کی دھمکیاں دیتا تھا۔ وہ آج پھر 3 دن بعد آیا تھا اور اس سے اس کی ماں کا پوچھ رہا تھا۔ 13 سالہ حنان اپنی ماں کو اب چھت پر تالا لگا کر رہنے کا کہتا تھا کہ وہ ظالم انسان اس کی ماں تک نہ پہنچے۔ میرے بیٹے کو چھوڑ دے رئیس! یہ آواز سلمیٰ کی تھی، حنان کی ماں۔ بیٹے کو لگنے والے تھپڑ نے اس ماں کا دل لرزا دیا تھا۔ وہ رہ نہ سکی اور سامنے آ گئی۔ حنان نے شکستہ حال ہو کر آنکھیں بند کی تھیں۔ وہ اپنی ماں کو اس جانور صفت انسان سے نہیں بچا پایا تھا۔ رئیس ایک جھٹکے سے حنان کو دھکیلتا سلمیٰ کے پاس آیا اور اس کو بازو کی گرفت سے پکڑتا نیچے کھینچتا آیا۔ کیا کر رہا ہے؟ چھوڑ دے مجھے! سلمیٰ نے بازو چھڑانا چاہا تھا، مگر رئیس کی گرفت اس کے بازو پر اس قدر مضبوط تھی کہ وہ چھڑوا نہیں پائی تھی۔ میں اب تیرا یہ منحوس وجود اس گھر میں نہیں دیکھ سکتا! وہ اسے گھسیٹتا ہوا آگے بڑھا تھا۔ اب اس نے حنان کو کندھے سے ذرا نیچے سے بازو کو پکڑا تھا اور پھر دونوں کو گھسیٹ کر گھر سے باہر نکالا تھا۔ انہیں دروازے کے پار دھکا دے کر سڑک پر پھینکا تھا۔ حنان اور سلمیٰ زمین پر جھٹکے سے جا گرے تھے۔ رئیس نے دروازہ پٹاخ سے بند کر دیا۔ سلمیٰ کراہ رہی تھی۔ حنان تیزی سے کھڑا ہوا اور سلمیٰ کو بازو سے پکڑ کر اٹھایا، پھر اپنی ماں کے آنسو اپنے آستین سے پونچھے۔ آج رئیس نے ہمیں بے سہارا کر دیا حنان، اب ہم کہاں جائیں گے؟ سلمیٰ نے بے بسی سے حنان کو دیکھتے ہوئے کہا۔ امی، ہم کہیں نہ کہیں چلے جائیں گے۔ اللہ کی زمین بہت بڑی ہے، بس یہاں واپس کبھی نہیں آئیں گے۔ یہ شخص ظالم ہے، یہ ہمیں مار دے گا امی۔ حنان نے سلمیٰ کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور وہ قدم قدم چلتے سڑک پر آگے بڑھ رہے تھے۔ چلتے چلتے اب شام ہونے کو آئی تھی۔ شام میں جب دھند میں اضافہ ہونے لگا تو سلمیٰ کو سانس لینے میں ایک بار پھر دشواری محسوس ہوئی تھی۔ ان کو ایک دم کھانسی آئی تھی اور پھر کھانسی کا ایک دورانیہ چلا تھا۔ حنان نے اپنی ماں کو پریشانی سے دیکھا تھا۔ اس کی ماں کو ٹی بی تھا جو وقت کے ساتھ بڑھتا جا رہا تھا۔ اس نے قریب ہی ایک فٹ پاتھ پر سلمیٰ کو بٹھایا اور خود ساتھ والی دکان پر گیا۔ آپ بتا سکتے ہیں کہ یہاں قریبی ہسپتال کون سا ہے اور کہاں ہے؟ دکاندار نے اسے ہسپتال کا پتہ دیا تھا۔ وہ اپنی ماں کے پاس آیا اور اسے بازو سے اٹھانے لگا۔ امی، بس تھوڑی سی ہمت کریں، ہسپتال بس اسی گلی میں ہے۔ امی پلیز، آپ ہمت نہ ہاریں۔ وہ روتا ہوا اپنی ماں کو سہارا دیتا چلا جا رہا تھا۔ سلمیٰ ابھی تک کھانس رہی تھی۔ اس کی کھانسی کی وجہ سے وہ اب قدم آہستہ آہستہ آگے بڑھا رہی تھی۔ وہ سامنے کی گلی سے مڑ کر ابھی کچھ منٹ ہی چلے تھے جب بڑا سا ہسپتال کا بورڈ نظر آیا تھا۔ پر بیٹا، تو علاج کے پیسے کہاں سے لے گا؟ اس کی ماں نے زور لگا کر کھانسی پر قابو پاتے ہوئے بولا تھا۔ اس نے اپنے آنسو صاف کر کے ماں کی طرف گردن اٹھائی تھی۔ امی، میں کہیں سے لے لوں گا، کچھ بھی کر لوں گا، پر آپ کو کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ سلمیٰ کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ اس نے حنان کے سر اور چہرے پر پیار سے ہاتھ پھیرا تھا۔ شام اب گہری ہو رہی تھی۔ سورج اب مکمل طور پر ڈوب چکا تھا۔ وہ سفید فراک کے ساتھ فیری جیسے پنکھ لگائے اپنے بابا کے ساتھ چل رہی تھی۔ فرحان صاحب اس کے ساتھ اس کا ہاتھ پکڑے چل رہے تھے اور اس کی ننھی ننھی انگلیاں فرحان صاحب کی ایک انگلی کے گرد جمی تھیں اور دوسرے ہاتھ میں وہ لالی پاپ لیے سامنے دیکھ رہی تھی۔ بابا، اچھے لوگ کون ہوتے ہیں؟ اس نے اپنے بابا کو سر اٹھا کر دیکھا تھا۔ فرحان صاحب نے جھک کر اسے کندھوں سے پکڑا۔ بیٹا، اچھے لوگ وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں، اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ اس نے اپنے بابا کو چند پل دیکھا اور پھر اپنی طرف دائیں طرف جس طرف وہ جا رہے تھے اس طرف دیکھا۔ بابا، وہ لڑکا بھی اچھا انسان ہے نا؟ اس نے معصومیت سے اس طرف دیکھ کر اپنی ننھی انگلی سے اشارہ کیا تھا۔ فرحان صاحب نے اس طرف نہیں دیکھا تھا۔ انہوں نے اس کا ہاتھ نیچے کیا تو ننھی بچی نے سوالیہ نظروں سے باپ کو دیکھا۔ بیٹا، ایسے اشارے نہیں کرتے، بری بات ہوتی ہے۔ اس نے فرحان صاحب کو دیکھا اور پھر اوپر نیچے سر ہلایا۔ اوکے بابا، پر آپ دیکھیں تو وہ لڑکا کیسے اپنی ماں کو سہارا دے رہا ہے، ان سے تو چلا بھی نہیں جا رہا۔ انہوں نے اس کے نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو وہ ایک 12-13 سال کا لڑکا اپنی ماں کو ساتھ لیے ہسپتال کی طرف بڑھ رہا تھا۔
اور اس کی ماں بہت زیادہ کھانس رہی تھی۔ بابا، اچھے لوگ دوسروں کی مدد کرتے ہیں نا، ہمیں بھی ان کی مدد کرنی چاہیے۔ اس کے ننھے سے دماغ میں فرشتوں جیسا کام آیا تھا۔ فرحان صاحب نے مسکرا کر دیکھا۔ ہاں بیٹا، ہمیں ضرور ان کی مدد کرنی چاہیے۔ اس نے اپنے بابا کی انگلی پر گرفت بڑھائی اور پھر آگے بڑھتے ہوئے فرحان صاحب کو آگے کی طرف کھینچا۔ چلے، جلدی چلے نا بابا، وہ لڑکا بہت اداس لگ رہا ہے، اس کی ماما بھی ٹھیک نہیں ہے۔ وہ لوگ آگے بڑھ گئے اور تھوڑی ہی دیر کے بعد اس لڑکے کے پاس پہنچے تھے۔ حنان نے فرحان صاحب کو اپنی طرف آتے دیکھا تھا، مگر وہ اپنی امی کو بازو سے پکڑے آگے بڑھتا رہا تھا۔ جب وہ بالکل اس کے قریب آ کر رکے تو حنان نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا تھا۔ بیٹا، آپ کے ساتھ کوئی بڑا نہیں ہے؟ فرحان صاحب نے نہایت نرم لہجے میں کہا۔ ہاں، آپ کے بابا کہاں ہیں جیسے میرے بابا ہیں؟ بچی نے اپنا لقمہ دیا تھا۔ بیٹا، بچے نہیں بولتے، آپ چپ رہو، میں بات کر رہا ہوں نا۔ انہوں نے تنبیہ کی تو وہ اوکے کہہ کر اچھے بچوں کی طرح چپ ہو گئی۔ حنان نے اپنی امی کو دیکھا تھا، وہ کھانس رہی تھیں۔ بولو بیٹا، میں آپ کی مدد کروں گا، فرحان صاحب نے نرم لہجے میں کہا۔ وہ میری امی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ فرحان صاحب نے اس کا کندھا تھپتھپایا۔ میری امی کو ٹی بی ہے اور اس کے علاج کے لیے میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ فرحان صاحب نے شفقت سے اس کو دیکھا۔ بیٹا، میں ہوں نا، میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں۔ حنان نے پر امید تاثرات سے فرحان صاحب کو دیکھا تھا۔ بیٹا آؤ، امی کو اندر لے کر چلو، میں ڈاکٹر سے بات کرتا ہوں، ان کا علاج ہو جائے گا۔ تم پریشان مت ہو اور پیسوں کی فکر مت کرو۔ حنان نے آنکھوں میں نمی لیے ان کو دیکھا تھا۔ وہ ننھی بچی بھی ساتھ کھڑی مسکرا رہی تھی۔ وہ اب ہسپتال میں موجود تھا اور سلمیٰ کو ڈرپ لگنے لگی تھی، مگر ڈاکٹر بتا رہا تھا کہ انہوں نے آج صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ یہ سن کر وہ باہر ویٹنگ ایریا میں بیٹھے حنان کے پاس آئے۔ حنان، آپ کی امی نے صبح سے کچھ نہیں کھایا، کیا بات ہے بیٹا، کیا آپ ابھی تک بھوکے ہو؟ حنان جو سر دونوں ہاتھوں میں گرائے ہوئے تھا، اب اس نے ان کی طرف دیکھا تھا۔ وہ جی، امی اور میں نے کچھ نہیں کھایا، کیسے کھاتے، جب بے سہارا ہو گئے ہیں اب کہاں سے کھائیں گے؟ فرحان صاحب کو اس کی آواز میں لڑکڑاہٹ محسوس ہوئی تھی اور انہیں لگا کہ انہیں یہ سوال اس سے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اچھا بیٹا، تمہاری امی کو ڈرپ لگنی ہے، مگر ان کا کچھ کھانا ضروری ہے اور ڈاکٹر نے کچھ دوائیاں بھی لکھ کر دی ہیں جو انہیں دینی ہے، تو میں یہ جا کر لے آتا ہوں۔ یہ میری بیٹی کا خیال رکھنا آپ پلیز، پل میں آنکھوں سے اوجھل ہو جاتی ہے، آگے ڈبل روڈ کراس کرنی پڑتی ہے، اس لیے اس کو نہیں لے کے جا رہا۔ زئی، تنگ مت کرنا بڑے بھائی کو۔ وہ جو کوریڈور کی ٹائلوں کے ڈبوں میں اچھل اچھل کر کھیل رہی تھی فوراً اپنے بابا کی طرف دیکھا۔ اوکے بابا۔ حنان بھی اس کی معصوم سی حرکتوں پر مسکرائے بنا نہ رہ سکا۔ جب فرحان صاحب وہاں سے چلے گئے تو وہ خاموشی سے آ کر حنان کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی، کچھ پل ٹانگیں زور زور سے ہلا کر ہسپتال کا جائزہ لیتی رہی، پھر حنان کو دیکھا۔ وہ سامنے دیوار پہ ٹکٹکی باندھے اپنی ہی سوچوں میں ڈوبا تھا۔ آپ کے بابا کہاں ہیں؟ اس کے سوال پر حنان نے ایک دم سے دیوار سے نظریں ہٹائیں اور اسے دیکھنے لگا۔ میرے بابا برے انسان ہیں، انہوں نے مجھے اور میری امی کو چھوڑ دیا ہے، اس نے کہا تو اس کی آنکھ سے ایک آنسو گال پر لڑکا تھا۔ ہاں، میرے بابا نے مجھے اچھے لوگوں اور برے لوگوں کے بارے میں بتایا ہے۔ میرے بابا نے بتایا ہے کہ برے لوگ مونسٹر ہوتے ہیں۔ تو کیا آپ کے بابا مونسٹر ہیں؟ بچی نے معصومیت سے سوال کیا تھا، مگر حنان کو اس سے بہتر لقب اپنے باپ کے لیے اور کوئی نہیں لگا تھا۔ ہاں، ایسا ہی سمجھ لو۔ تمہارا نام کیا ہے؟ حنان سے کچھ دیر کی بات نہیں حنان کو اس کا دل دادا بنا دیا تھا، وہ تو بالکل کوئی معصوم فرشتہ تھی۔ میرا نام گلنار زہرا ہے۔ حنان نے پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ وہ بچی اپنی ان سرمئی آنکھوں کے ساتھ جتنی حسین تھی، اس کا نام بھی اس کی طرح اتنا ہی حسین تھا۔ بہت پیارا نام ہے آپ کا، حنان نے مسکرا کر کہا تھا تو گل نے منہ پر شرما کر ہاتھ رکھا تھا۔ آپ کو پتہ ہے، بابا کہتے ہیں جب میں پیدا ہوئی تھی نا، میری ماما اللہ میاں کے پاس چلی گئی تھی اور بابا اداس ہو گئے تھے، مگر انہوں نے جب میری آنکھیں دیکھی تو اداسی دور ہو گئی تھی، کیونکہ میری آنکھیں بالکل میری ماما پر گئی تھیں۔ بابا کہتے ہیں کہ ان کو جب بھی ماما کی یاد آتی ہے تو وہ میری آنکھیں دیکھ لیتے ہیں۔ حنان کو اب اس کی باتیں اچھی لگ رہی تھیں، اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ بولتے رہے اور حنان اسے سنتا رہے۔ آپ کی آنکھیں لائٹ براؤن ہیں
आपकी मामा जैसी है ना? हन्नान की आंखें बिल्कुल सलमा जैसी हल्की भूरी थीं। हन्नान ने मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाया। इतनी देर में फरहान साहब दूर से फल और चंद अद्वियात लिए अस्पताल के दाखिली रास्ते से अंदर आए थे। हाँ भाई, क्या बातें हो रही हैं? तंग तो नहीं किया इसने तुम्हें? हन्नान ने मुस्कुराकर सर झुकाया। नहीं अंकल, आपकी बेटी बहुत प्यारी बातें करती है। आपने इसकी बहुत अच्छी तरबियत की है। फरहान साहब ने मुस्कुराकर हन्नान को देखा। तुम्हारी तरबियत भी बहुत अच्छी हुई है बेटा। इस बात का अंदाजा मुझे तुम्हें पहली नजर में देखकर ही हो गया था। कुछ देर बाद सलमा को ड्रिप लग चुकी थी। बाहर अब अंधेरा हो चुका था और सर्दी अपने जोरों पर थी। बेटा, अब आपकी अम्मी की तबीयत बेहतर है। हम आप दोनों को आपके घर ड्रॉप कर देते हैं, फरहान साहब ने खलूस से कहा। हन्नान ने सर झुका लिया। नहीं अंकल, आपका बहुत शुक्रिया। आपने हमारी इतनी मदद की है। फरहान साहब के 3-4 बार इसरार पर हनान को बताना पड़ा था कि उसके बाप ने उसके साथ क्या क्या किया था और वो बेघर हो गए हैं। फरहान साहब ने अफसोस से उन दोनों माँ बेटे को देखा था। उन्होंने हन्नान के कंधे पर हाथ रखा तो उसने चौंक कर ऊपर देखा। फरहान साहब बहुत मान से उसको देख रहे थे। उसे लगा था जैसे वो रईस का नहीं बल्कि उनका सगा बेटा हो। आप बेटा हमारे घर चलो, हमारे साथ। हन्नान ने सर हिलाया था जैसे उससे मुत्तफिक ना हो। अंकल, आपका बहुत शुक्रिया, मगर ये सही नहीं है। हम आपके घर कैसे जा सकते हैं? फरहान साहब ने उसके कंधे से हाथ नहीं हटाया था। जिद मत करना। आपको ऐसे यहाँ बेयारो मददगार छोड़कर जाना गलत होगा और उससे मेरा दिल मुतमिन नहीं है। फरहान साहब ने स्टार्ट किया। अंकल, लेकिन हम कब तक आपके सर पर बोझ बनकर रहेंगे? आखिर एक दिन तो मुझे ही कुछ करना होगा ना। फरहान साहब ने इस बार उसे दोनों कंधों से बिल्कुल उसी तरह पकड़ा जैसे वो गुल को पकड़ते हैं और उसे समझाया। बेटा, तुम बिल्कुल ठीक हो, मगर अभी तुम इस काबिल नहीं हुए, इसलिए अभी तुम हमारे साथ रहो। मैं तुम्हारी अम्मी का इलाज और तुम्हारी तालीम का खर्चा उठाऊंगा और मैं वादा करता हूँ कि जैसे ही तुम अपने पैरों पर खड़े होने के काबिल हो जाओगे मैं तुम्हें खुद जाने दूंगा और तब तक तुम हमारा सारा कर्ज अदा कर देना, ठीक है? हन्नान ने समझते हुए सर हिलाया था। ये हुई ना बात, अब चलो, गाड़ी आती ही होगी। हन्नान अब अपनी माँ को देख रहा था जो इसके सर पर हाथ फेरकर गोया उसे फरहान साहब की बात मानने का कह रही थी। फिर वो अपनी माँ को सहारा देता बाहर आ गया। बाहर ड्राइवर अब गाड़ी ले आया था। हन्नान ने सलमा बी को गाड़ी में एक तरफ बिठाया था और खुद दूसरी तरफ से जाकर बैठ गया। गुलनार आगे की सीट पर फरहान साहब की गोद में बैठी थी। जब हन्नान ने अपनी तरफ का दरवाजा बंद किया तो गुल ने उसके जानिब पीछे मुड़कर देखा। हन्नान ने नजर उठाकर उसे देखा तो वो उसे ही देखे मुस्कुरा रही थी और वो बहुत खुश थी। और उसकी खुशी की वजह ये थी कि हन्नान अब उसके घर रहेगा। गाड़ी अब अपने रास्ते पर रवाना थी। फरहान साहब की बड़ी सी कोठी अपने पूरे कद के साथ खड़ी थी। उसके बाहर सड़क पर कहीं कहीं गाड़ियों की आमदोरफ्त भी जारी थी। नाश्ते की टेबल पर फरहान साहब बैठे आज के अखबार खोले उसकी सुर्खियां देख रहे थे। नाजो भी जाकर देखें जई जागी है या नहीं, और वो सातवें कमरे में हमारे मेहमान हैं। नॉक करके पूछ लीजिएगा कि वो नाश्ता यहाँ करेंगे या फिर कमरे में। नाजो भी ने सर झुकाकर हुक्म की तामील की थी। नाजो भी उनकी बहुत पुरानी मुलाजमा थी जो कि फरहान साहब की शादी से भी पहले जब उनके वालिदैन हयात थे तब से उनकी खिदमत करती थीं। उनके तकरीबन 20 साल इसी खानदान की खिदमत में गुजरे थे। फरहान साहब को गुल के मामले में सिर्फ नाजो पी पर ही भरोसा था। फरहान साहब जब नौकरी पर होते तो गुल को जगाना, नाश्ता कराना, स्कूल ले जाना, वापस लाना, ये सब जिम्मेदारी नाजो बी की थी। गुल भी उन्हें सबसे ज्यादा गुल भी उनसे सबसे ज्यादा मानूस थी। वो उनको अपने स्कूल की कहानियां सुनाती, उनके साथ साथ पूरे घर में घूमती रहती। वो जो भी काम कर रही होती थी गुल उनके साथ जा जाकर उनसे सवालात के ढेर लगा देती थी। उसकी वजह से अक्सर नाजो बी को कुछ काम भूल जाते और जब फरहान साहब को पता चलता तो वो नाजो बी और गुल दोनों की एक साथ क्लास लेते थे। नाजो भी गुलनार के कमरे में आई तो वो हमेशा की तरह इस दफा सो नहीं रही थी बल्कि अपने प्रिंसेस मिरर के सामने बैठी अपने बालों के लट पकड़े कोई हेयर स्टाइल बनाने की कोशिश कर रही थी। गुल को बचपन से ही शहजादियों की कहानियां सुनना बहुत पसंद था। उसके कमरे में हर एक चीज प्रिंसेस थीम में सजी थी। उसकी वार्डरोब में तमाम तर कपड़े भी प्रिंसेस थीम के थे। उसके पास सिंड्रेला, एरियल, बेले, रुपेंजल और बहुत सी शहजादियों जैसे ड्रेसेस थे। वो उन तमाम कहानियों को बड़े गौर से पढ़ती थी। हर कहानी में एक शहजादा आकर शहजादी को बचाता था और शहजादे के साथ उसकी हैप्पी एंडिंग होती थी। वो उन कहानियों की फैन थी। नाजो भी उसे देखकर मुस्कुराई थी। वो कल वाले ही कपड़ों में बैठी थी। गुल, आज तो आप मेरे जगाने से पहले ही जाग गई हैं।
नाज़ुबी ने कहा तो गुल ने उनकी तरफ देखा। बालों की लट अभी तक उसने पकड़ी हुई थी। नाज़ुबी, आज आप जाएं, आज मैं खुद ही तैयार होंगी। नाज़ुबी उसका बिस्तर सीधा करती अब तकिया लगा रही थी। बेटा, आपको तैयार होना नहीं आता, मैं आपको अच्छा सा तैयार कर देती हूँ। उसने उकताकर नाज़ुबी को देखा था। नहीं नाज़ुबी, आज हन्नान आया है, मुझे अच्छे से तैयार होना है। नाज़ुबी ने उसको हैरत ज़दा आंखों से देखा था। बेटा, आपको किसी दूसरे के लिए तैयार नहीं होना चाहिए। हाँ, अभी तो आप बच्ची हो, मगर आप एक बेटी हो, और बेटियां नामहरम के लिए तैयार नहीं होती। वो अपने ड्रेसिंग चेयर से उतरकर नाज़ुबी के पास आई थी। नामहरम क्या होता है बी? उसने आंखों में मासूमियत लिए पूछे था। नामहरम वो मर्द होते हैं जिन्हें हम नहीं जानते, ना ही उनके साथ हमारा ताल्लुक होता है। गुल ने उंगलियां दाएं गाल के थोड़े नीचे रखकर कुछ सोचा था। यानी जो हमारी फैमिली के ना हो, है ना? उसने बहुत समझदारी से उन्हें देखते हुए कहा। हाँ, ऐसा ही है, पर वो भी गुलनार थी, वो एक कदम आगे सोचती थी। फिर तो मैं तैयार हो सकती हूँ, क्योंकि बाबा ने कहा है कि हन्नान हमारी फैमिली है। और भी पीटती रह गई। उन्होंने सोचा कि वो अभी छोटी है, जब बड़ी होगी तो समझ जाएगी। चलो आओ, शाबाश, आज तुम्हें ये ड्रेस पहनाती हूँ। सिंड्रेला तुम्हारी फेवरेट है ना? बीजान ने उसके अलमारी से नीले रंग का फ्रॉक निकालकर उसे दिखाया था। उसने फौरन ही हामी भर ली थी। नाज़ुबी ने अब साथ वाले कमरे का दरवाजा बजाया था। हन्नान फौरन ही बाहर निकला था। वो बड़े साहब पूछ रहे हैं कि आप नीचे आकर नाश्ता करेंगे या ऊपर कमरे में ही भिजवा दें? हन्नान ने पीछे बिस्तर पर लेटी सलमा को देखा था। कौन है बेटा? उन्होंने हन्नान से पूछा। वो पूछ रहे हैं कि हम नाश्ता कहाँ करेंगे। अम्मी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं कमरे में ही भिजवाने का कह दूं? सलमा भी सीधी होकर बैठ गई। नहीं बेटा, अच्छा नहीं लगता। उनके इतने एहसान हैं और हम इतनी बेरुखी दिखाएं। नीचे चलते हैं, मैंने पूरी रात आराम किया है, अब मैं ठीक हूँ। हन्नान ने सर हिलाया। हम नीचे आकर ही करेंगे। नाज़ुबी ने सर झुकाया और फिर गुल के कमरे में आई तो वो कपड़े बदल चुकी थी। उन्होंने उसको कंघी की और फिर मैचिंग शूज पहनाए। अब वो बिल्कुल तैयार खड़ी थी। नाज़ुबी उसे लेती अब नीचे उतर रही थी। बाबा! गुल तेजी से भागते हुए फरहान साहब के पास आई थी और फिर उनके गले लगने के लिए बाजू फैलाए तो फरहान साहब थोड़ा नीचे झुके ताकि वो उनके गले लग सके। फिर वो उनके साथ वाली कुर्सी पर बैठ गई। कुछ देर बाद हन्नान और सलमा बीबी नीचे आ गए थे। ये डाइनिंग टेबल थी जिसकी मरकजी कुर्सी पर फरहान साहब बैठे थे और उनके और दाएं और बाएं तरफ बाकी कुर्सियों की कतार लगी थी। गुल उनके साथ दाएं वाली कुर्सी पर बैठी थी। हन्नान ने आगे बढ़कर सलमा बी के लिए दाएं तरफ की दूसरी कुर्सी निकाली थी। सलमा बी ने आगे बढ़कर उस पर बैठते हुए उन्हें सलाम किया था। अब पहली कुर्सी निकालकर हन्नान उस पर बैठ चुका था। सलमा बी और हन्नान, आप लोग आराम से तो सोए थे ना कल रात को? कोई दिक्कत हुई हो तो जरूर बताएं। हन्नान ने सर हिलाया था। साथ ही सलमा भी बोली थी। नहीं जी, आप लोगों का तो बहुत एहसान है कि इस मुश्किल वक्त में आप लोगों ने हमें अपनी छत तले रखा है। सलमा बी ने बहुत ही एहसानमंद अंदाज में कहा। जी अंकल, हम तो शुक्रगुजार हैं कि हमें आपके जैसा अच्छा इंसान मिला है। फरहान साहब उनकी बात पर मुस्कुराए थे। बेटा, ये सब तो अल्लाह की तरफ से था, मैं तो सिर्फ एक वसीला था। और फिर सामने से प्लेट उनकी तरफ बढ़ाई जो हन्नान ने आगे बढ़कर ली थी। उन्होंने खाना खाने से पहले गुल को देखा तो वो बैठी खाली प्लेट पर चम्मच से खेल रही थी। उनको अचानक याद आया कि आज उन्होंने उसके ड्रेस थीम के बारे में नहीं पूछा था और वो अब नाराज थी। फरहान साहब ने खनकार के इसको अपनी तरफ मुतवज्जा करवाया, मगर उसने ऊपर नहीं देखा था। मेरी प्यारी सी बेटी ने आज कौन सी शहजादी का कोस्प्ले किया हुआ है? उसने चमकती आंखों से फरहान साहब को देखा था। वो उसके बारे में नहीं भूले थे। उसने सोचा था, बाबा, आपको पता है आज मैं सिंड्रेला बनी हूँ। फरहान साहब उसको देखकर मुस्कुराए थे। वैसे मैं जिस शहजादी को जानता हूँ वो सिंड्रेला से ज्यादा प्यारी शहजादी है। उसने हैरत से उन्हें देखा। बाबा, आपको भी शहजादियों के बारे में पता है? गुल ने खुशगवार हैरत से पूछा था। हाँ ना, वो शहजादी सबसे ज्यादा प्यारी है। अब तो गुल को चैन नहीं आ रहा था कि बाबा उसे उस शहजादी का नाम बताएं। बाबा, उसका नाम क्या है? उसकी पिक्चर भी दिखाएं ना, उसने मिन्नत के अंदाज में कहा था। उसका नाम है शहजादी गुलनार।
उसने अपना नाम सुना तो खिलखिलाकर हंस दी थी। हन्नान दूसरी तरफ बैठा उन बाप बेटी की बातों पर रश कर रहा था। सलमा भी उनको देखकर मुस्कुरा रही थी। बाबा, वो तो मैं हूं ना? फरहान साहब ने उसके सर पर प्यार से हाथ फेरा था। हाँ, वो मेरी बेटी है, दुनिया की सबसे प्यारी शहजादी। वो जो चम्मच से खेल रही थी अब एकदम से सीधी हुई थी। बाबा, शहजादी के लिए शहजादा आता है ना? फरहान साहब ने चाय का घूंट भरा और फिर उसकी तरफ देखा। हाँ बेटा, जब वो बड़ी हो जाती है तो एक शहजादा आता है जो उसे ले जाता है। उसने पहले तो बुरा सा मुंह बनाया, फिर हन्नान की तरफ देखा। हन्नान जो सैंडविच खा रहा था उसकी नजरें महसूस कर गया। हन्नान ने सर उठाकर उसे देखा था। गुल मुस्कुराई थी, पर हन्नान को समझ नहीं आया कि वो क्यों उसे देखकर मुस्कुरा रही है। बाबा, पर मेरा शहजादा तो आ गया है अभी। फरहान साहब जो अखबार पढ़ने में मसरूफ थे अब उसको ना समझी से देखने लगे। मेरा शहजादा तो हन्नान है। और फरहान साहब की मुस्कुराहट एकदम से गायब हुई थी। ये उनकी बेटी क्या सीख रही थी? ऐसी तरबियत नहीं थी गुल की। जई, खबरदार जो आपने आइंदा ऐसी कोई बात की हो तो। वो जो बहुत ही खुश होकर अपने बाबा के जवाब की मुंतजिर थी उनके झिड़कने पर उदास हुई थी। लेकिन बाबा, अभी आपने कहा था कि मैं शहजादी हूँ और शहजादी के लिए एक शहजादा आता है, तो हन्नान भी तो मेरा शहजादा हो सकता है। वो तो इतना अच्छा है, उसकी आंखें भी कितनी प्यारी हैं बाबा। मुझे तो हन्नान पसंद है। फरहान साहब ने अब अखबार एक तरफ रखा था। सलमा भी और हन्नान खामोशी से बैठे थे जब एक थप्पड़ गुल को अचानक ही पड़ा था। वो मासूम बच्ची इस थप्पड़ की ताब ना ला सकी थी और कुर्सी से नीचे गिरने को थी जब नाज़ो बी ने आकर उसे सहारा दिया था। उसकी आंखों से मोटे मोटे आंसू गाल हर से टपक कर थोड़ी तक जा रहे थे। माहौल में तनाव आया था। सलमा भी और हनान कुछ ना बोल पाए। वो कैसे बोल सकते थे? फरहान साहब अब कुर्सी खींचकर खड़े हुए और फिर बाहर की तरफ बढ़ गए। हन्नान को यह सब बहुत बुरा लगा था। गुल अब अपने आंसू साफ करती सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई थी। हन्नान ने गर्दन मोड़कर उसे जाते हुए देखा। उसे उस मासूम सी बच्ची पर तरस आया था। अम्मी, आप चले कमरे में। उसने कुर्सी से खड़े होते हुए सलवा भी से कहा था, फिर उनको कमरे की तरफ ले गया था। हन्नान को गुल का वो रोता चेहरा अभी तक आंखों से ओझल नहीं हुआ था। वो बेड की एक तरफ बैठा था। उसने अपनी अम्मी की तरफ देखा तो वो सो गई थी। उन्होंने नाश्ते के बाद दवाई ली थी जिसकी वजह से उनको नींद आ गई थी। हन्नान को जब तसल्ली हुई कि सलमा भी अब पुरसकून सो रही हैं, तो वो उनकी साइड से उठकर बाहर आ गया। फिर गुल के कमरे का दरवाजा नॉक किया। बाबा, आप चले जाएं, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। दरवाजे के पार से गुल की दबी दबी सी आवाज आई थी। मम मैं हूँ, हन्नान। गुल ने हन्नान का नाम सुना तो फौरन दरवाजे की तरफ बढ़ी और दरवाजा खोल दिया। हन्नान ने गुल की तरफ देखा तो वो रो रो कर उसकी नाक और आंखें सुरखो रही थी। मैं अंदर आ सकता हूँ? हन्नान ने बहुत आहिस्ता सी आवाज में कहा। गुल ने दरवाजा खोल दिया और खुद एक तरफ होकर हन्नान को अंदर आने का रास्ता दिया। हन्नान अंदर आ गया। वो भी उसके पीछे अंदर आ गई थी। अब हन्नान उसके बेड के साथ पड़े सोफे पर बैठ गया। गुल उसकी तरफ रुक के बेड पर बैठ गई। वो निहायत संजीदा सी अपनी उम्र से बड़ी बड़ी लग रही थी। गुल, आप अपने बाबा से नाराज हो? हन्नान ने बहुत सोचने के बाद ये सवाल किया। मेरे बाबा बुरे हो गए हैं, उन्होंने मुझे मारा है। वो बोली तो उसकी आवाज रुंधी हुई थी। जोर से लगा था थप्पड़? हन्नान ने सरगोशी से जरा ऊंची आवाज में कहा था। गुल ने सर ऊपर नीचे हिलाया था। नजरें झुकाए वो अपने पहलू में गिरे हाथों को देख रही थी। आपको पता है ना, आपके बाबा बहुत अच्छे इंसान हैं। आज अगर आप पहली बार बात समझ आती तो उनको गुस्सा ना आता और वो आपको ना मारते। गुल अभी तक नजरें झुकाए हुए थी। वो बहुत लाडली थी और फरहान साहब उस पर कभी हाथ नहीं उठाते थे, मगर आज उन्हें लगा था कि उनकी बेटी की तरबियत गलत सिमत में जा रही है और वो थप्पड़ इसके लिए जरूरी हो गया था ताकि वो जान ले ये गलत है। हन्नान को फरहान साहब का मारना गलत नहीं लगा था, मगर उसे उस बच्ची के आंसू से तकलीफ हुई थी। गुल, इधर देखो मेरी तरफ। गुल ने ऐसे ही सर ऊपर उठाकर हन्नान की तरफ देखा। आप तो अच्छी बच्ची हो ना, आइंदा अपने बाबा से ऐसा कुछ नहीं कहोगी, ओके? उसने मुस्कुराकर अपनी आंखों से आंसू साफ किए। हाँ, मैं नहीं कहूंगी, मगर फिर आपको एक प्रॉमिस करना होगा। आप रोज मेरे साथ 1 घंटा खेलेंगे। हन्नान ने उसको मुस्कुराता देखा तो वो भी मुस्कुरा दिया। ठीक है, मैं आपके साथ खेलूंगा और आप अपने बाबा को तंग नहीं करेंगी, ठीक है ना? गुल ने सर हिलाया था।
शाम को जब फरहान साहब घर वापस आए तो नाजो बी से गुल के बारे में पूछा। उन्होंने बताया कि वो अपने कमरे में है। वो सीधा ऊपर गए थे। सुबह वाले वाकये के बाद उनका दिल सारा दिन बेचैन रहा था। उन्होंने कभी भी आज तक उस पर हाथ नहीं उठाया था, मगर अब वो बड़ी हो रही थी। उसे अच्छे बुरे का पता चलना बहुत जरूरी था। उन्होंने दरवाजा नॉक किया और फिर आहिस्ता से इंतजार करने लगे। जई, मेरी प्यारी बेटी, दरवाजा खोल दो प्लीज। अच्छा, आई एम सॉरी बेटा। उन्होंने भी आधी बात ही कही थी क्योंकि गुल ने दरवाजा फौरन खोल दिया। बाबा, मुझे समझ आ गई है। मैंने बदतमीजी की थी ना। अब मैं आइंदा ऐसा नहीं करूंगी। फरहान साहब उसकी समझदारी पर हैरान हुए थे। मेरी बेटी तो बहुत समझदार हो गई है। उन्होंने झुककर उसके गाल को प्यार से छुआ था। हाँ बाबा, हन्नान ने मुझे समझाया है तो मुझे फौरन समझ आ गई थी। फरहान साहब ने मुस्कुराकर साथ वाले कमरे के दरवाजे को देखा था। उन्हें फौरन कुछ याद आया था। नाजो भी, खाना लगवा दें और हन्नान लोगों से कहें कि वो भी नीचे आ जाएं। जी बेहतर। नाजो भी कहती नीचे की किचन की तरफ बढ़ गई। शाम के खाने के वक्त वो लोग अब आ चुके थे। तभी फरहान साहब ने हन्नान को देखा। वो खामोशी से अपना खाना खा रहा था। हन्नान बेटा, आपसे एक बात पूछनी थी। हन्नान ने फौरन सर उठाकर उनकी तरफ देखा। जी अंकल, कहिए। उसने कहा तो फरहान साहब ने कुछ सोचते हुए उसकी तरफ देखा। बेटा, आपसे मुझे आपकी राय लेनी थी। जिस स्कूल में जई पढ़ती है, मैं आपका एडमिशन वहां करवा दूं या फिर आप कहीं और जाना चाहते हो? हन्नान ने सलमा को देखा तो उन्होंने आंखें बंद करके उसे तसल्ली दी थी, गोया कि जो वो मुंतखब करे। अंकल, जैसा आपको ठीक लगे। अब फरहान साहब मुस्कुरा दिए थे। ठीक है बेटा, फिर कल से ड्राइवर आपको और जई को एक साथ ले जाया करेगा। हन्नान को ने उनकी बात समझकर सर हिला दिया था। सुबह को जब हन्नान की आंख खुली तो सलमा भी सामने जाए नमाज पर बैठी थी। उसने सामने घड़ी पर वक्त देखा तो 4:30 हो रहे थे। वो फौरन बिस्तर से उतर कर वजू करने चला गया। वापस आकर उसने सलमा बी से इजाजत ली और नीचे आ गया। फरहान साहब सर पर सफेद टोपी किए तस्बीह जेब में डाले बाहर निकल रहे थे। जब उन्होंने नीचे आते हन्नान को देखा था, वो उसके लिए रुक गए थे। हन्नान अब नीचे आ चुका था। आओ बेटा, बहुत अच्छा लगा ये देखकर कि तुम भी मस्जिद में नमाज पढ़ते हो। हन्नान अब उनके साथ कदम बढ़ा रहा था। वो लोग अब रोड पर निकल आए थे। अंकल, दरअसल काफी अरसे से मैं मस्जिद नहीं जा पा रहा था, जिसका मुझे बहुत दुख है। आज मैंने सोचा कि अपने टाइम टेबल को फिर से जैसे पहले जैसे लाइन पे ले आऊं। मुझे यहाँ के रास्तों का नहीं पता था, फिर मैंने सोचा कि बाहर तो निकलूं। अल्लाह की राह में निकलने वाले कदमों को रास्ता खुद ब खुद ही मिल जाता है। फरहान साहब उसकी बात से बहुत मुतासिर हुए थे। माशाल्लाह हन्नान, तुम तो बहुत ही समझदार हो। वो सर झुकाकर मुस्कुराया था। उसको ऐसा लगा था जैसे उसके बाप ने उसकी तारीफ की हो। वो लोग नमाज पढ़कर जब वापस आए तो गुल अब यूनिफॉर्म पहने नाजो बी के साथ नीचे आ रही थी। बेटा, तुम्हारा यूनिफॉर्म मैं ले आया था। नाजो बी ने तुम्हारी अलमारी में रखा होगा। जाओ, तुम भी तैयार हो जाओ। फरहान साहब ने हन्नान के कंधे पर हाथ रखकर कहा। जी ठीक है अंकल। वो कहकर ऊपर चला गया था। कुछ देर बाद जब वो तैयार होकर नीचे आया तो गुल और फरहान साहब अब नाश्ते की टेबल पर बैठे थे। वो भी उनके साथ आकर बैठ गया। बेटा, आपकी वालदा कैसी हैं? उन्होंने हन्नान से पूछा। जी वो बेहतर हैं अब अल्हम्दुलिल्लाह। अभी सो रही हैं, इसीलिए मैंने उनको जगाना मुनासिब नहीं समझा। उसके बाद सब खामोशी से नाश्ता कर रहे थे। फरहान साहब अब गाड़ी बाहर निकाल रहे थे। उन्होंने हन्नान और गुल को आज खुद स्कूल छोड़ना था। जई बेटा, आप और हन्नान, आप दोनों जल्दी आ जाओ, देर हो जाएगी। गुल जल्दी से अपना ट्रॉली बैग लेते आगे बढ़ गई थी। हन्नान ने भी नाश्ता कर लिया था और अब वो साथ वाली कुर्सी से बैग उठाता गुल के पीछे बाहर निकल आया था। गुल अगली सीट पर बैठ गई थी और नाजोबी ने उसका बैग सेट कर दिया था। हन्नान पिछली सीट पर खामोशी से बैठ गया। हन्नान की जिंदगी की नई शुरुआत होनी थी आज। उसने सोच लिया था कि अब वो दिल लगाकर पढ़ेगा और फिर एक दिन अपने पैरों पर खड़ा होगा। वो जब इस काबिल हो जाएगा तो फरहान साहब के तमाम एहसानात का बदला भी उतार देगा। वो अपनी अम्मी के लिए एक अच्छा सा घर बनवाएगा। अपनी अम्मी की जिंदगी से उन तल्ख यादों को निकाल देगा। वो आज इसी सोच के साथ नए स्कूल जा रहा था। स्कूल में जब वो अपनी क्लास में गया तो टीचर ने तमाम बच्चों से उसका तारुफ करवाया था और फिर टीचर ने उसे एक बच्चे के साथ वाली सीट पर बैठने के कहा। उस बच्चे ने हन्नान को अपना नाम बताया। फिर इसे जो क्लासेस अब तक हुई थी उनकी तफसील बता रहा था। उससे हन्नान की पहले दिन ही दोस्ती हो गई थी। अब हन्नान को स्कूल में अच्छा लगने लगा था। वो पढ़ाई में हमेशा की तरह इस क्लास में भी सबसे आगे था।
टीचर्स उसकी तारीफ करते थे। वो क्लास का मॉनिटर भी मुंतखब हो गया था। फरहान साहब उसकी कारकर्दगी से बहुत खुश थे। गुलनार भी हमेशा अपनी क्लास में फर्स्ट आती थी। वो 3 में थी और सालाना इम्तिहानात होने ही वाले थे। हन्नान और वो एक साथ बैठकर पढ़ते थे। हन्नान गुल की होमवर्क और टेस्ट में मदद करता रहता था। इम्तिहानात का सिलसिला जारी हो गया था। वो दोनों बाकायदगी से इम्तिहानात की तैयारी कर रहे थे। ऐसे में फरहान साहब ऑफिस में मसरूफ रहते थे। एक हफ्ता गुजर चुका था। अब उनका एनुअल फंक्शन था जिसमें इम्तिहानात के नताइज का भी पता चलना था। बाबा, कल आपको हमारे साथ जाना होगा। मेरा और हन्नान का रिजल्ट है कल। उन्होंने अखबार फोल्ड करके सामने मेज पर रखी। ठीक है बेटा, कल आपके साथ चलूंगा, उन्होंने गुल को प्यार करते हुए कहा। वैसे तो मैं जानता हूं कि तुम दोनों ने हमेशा की तरह टॉप किया होगा। हन्नान जो साथ वाले सोफे पर सलमा के साथ बैठा था मुस्कुराया था। अगले दिन गुल नाजो बी के साथ कपड़ों पर बहस कर रही थी। नाजो बी, मैंने व्हाइट फ्रॉक पहनना था, ये तो रेड है। नाजो बी ने परेशान होकर इसे देखा। बेटी, वो तो अभी ड्राई क्लीनिंग से वापस ही नहीं आया है। उसने मुंह भुलाया हुआ था। तो नाजो बी आप लेकर आए ना, आपको पता है वो मेरा फेवरेट है। नाजो बी ने झुककर उसे समझाने की कोशिश की। बेटा, वो तो शाम को आएगा ना, आप ये ड्रेस पहनोगी तो इसमें बिल्कुल लाल परी लगोगी। लेकिन वो तो बाजिद थी कि उसने सफेद ही पहनना है। कुछ देर बाद दरवाजे पर नॉक हुआ तो नाजो बी ने दरवाजा खोला। सामने हन्नान खड़ा था। नाजो बी, गुल तैयार हो गई है क्या? उन्होंने अंदर खड़ी गुल को देखा था जो सीने पर बाजू बांधे मुंह फुलाए हुए थी। हन्नान ने गर्दन आगे करके उनके नजरों के ताकुब में देखा था। इसे क्या हुआ है? हन्नान ने राजदारी से नाजो बी से पूछा था। हन्नान साहब, देखे ना, ये जिद कर रही है कि उसे सफेद फ्रॉक पहनना है जबकि अभी वो धुला नहीं है। आप इसे समझाए ना कि ये लाल वाला पहन ले। हन्नान सर झुकाकर मुस्कुराया था। ठीक है, मैं देखता हूँ इसे। नाजो बी को फरहान साहब ने आवाज दी तो वो उनके किसी काम से चली गई। वो अंदर आया तो गुल उसे देखकर मुस्कुराई ही थी। क्या हुआ है आपको? कौन सा ड्रेस पहनना है? हन्नान ने नरमी से पूछा था। उसकी सुरमई आंखों में खफगी आई थी। देखे ना, मुझे व्हाइट ड्रेस पहनना है लेकिन नाजो बी ने वो ड्राई क्लीन के लिए दे दिया है। हन्नान ने उसकी आंखों में खफगी देखी, फिर कुछ सोचने लगा। आपको पता है रेड कलर तो मेरा फेवरेट है, लेकिन मैं तो लड़का हूँ, रेड कलर पहन नहीं सकता। अब मैं क्या करूं? उसने मुंह बनाते हुए कहा। हाँ, तो ठीक है ना, मैं आज रेड ड्रेस पहन लेती हूँ। उसने सर झुकाया हुआ था। फिर जब गुल ने ये कहा तो उसने फौरन ऊपर देखा। आप पहनोगी मतलब मेरी बेस्ट फ्रेंड, फिर तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। उसने उसकी सुरमई आंखों को देखते हुए कहा। हाँ ठीक है, मैं अब रेडी हो जाती हूँ। और फिर वो बाहर चला गया। अब गुल लाल रंग का फ्रॉक पहने गोल गोल घूमकर अपने आप को शीशे में देख रही थी। नाजो भी तो हैरान थी कि वो इतनी जल्दी मान कैसे गई। खैर, जो भी हो, अब नाजो बी का काम आसान हो गया था। कुछ देर बाद वो तैयार होकर नीचे उतरी थी। बाबा, देखें, मैं प्यारी लग रही हूँ ना? फरहान साहब ने उसके माथे को चूमा था। हाँ, मेरी बेटी सबसे ज्यादा प्यारी लग रही है। और वो खिलखिलाकर मुस्कुरा दी थी। 3 साल बाद शाम का सूरज अब तलू हो चुका था। फरहान साहब अपने कमरे में बैठे थे जब उनके दरवाजे पर किसी ने नॉक किया था। आ जाओ। उन्होंने ऐनक उतार कर मेज पर रखी थी। हन्नान ने दरवाजा आहिस्ता से खोला और फिर अंदर आकर दरवाजा बंद किया। हन्नान बेटा, आप बोलो, क्या बात है? वो आकर खड़ा था तो फरहान साहब ने उसको सामने की कुर्सी पर बैठने का इशारा किया था। अंकल, वो आप जानते हैं कि मेरी मैट्रिक के इम्तिहानात अब हो गए हैं और मैंने क्लर्क की नौकरी के लिए कहा है अपने दोस्त को। आपने कहा था जब मैं कुछ करने के काबिल हो जाऊंगा तो आप मुझे जाने देंगे। उसने अपनी बात ठहर ठहर कर की थी। बेटा, क्लर्क की नौकरी से तो बहुत मामूली तनख्वाह मिलती है और आपको पता है कितनी महंगाई है। आपको ऐसे कैसे जाने दूं मैं? हन्नान ने सर झुकाया था। अंकल प्लीज, अब मैं मजीद आप पर बोझ नहीं बनना चाहता। मैं अपनी कमाई से कुछ ना कुछ कर लूंगा। फरहान साहब ने कुछ सोचते हुए दोनों हाथों की उंगलियां बाहर मिलाई थीं। फिर फिर आखिरी दफा की बात मान लो, तुम्हारी अम्मी और तुम अपने घर में रहोगे। हन्नान ने ना समझी से उन्हें देखा। जी अंकल, मैं समझा नहीं। फरहान साहब ने आगे झुककर उसके कंधे पर हाथ रखा था। देखो बेटा, हयाताबाद में मेरा एक घर है जो काफी अरसे से बंद है।
وہ میرے والدین کا گھر تھا جو میرے والد نے میرے نام لگایا تھا، مگر یہ گھر مجھے کمپنی کی طرف سے ملا ہے۔ میری بیوی کی خواہش تھی کہ ہم اس گھر میں رہیں، تو وہ گھر میں بیچنا نہیں چاہتا تھا کیونکہ اس سے میرے والدین کی یادیں جڑی ہیں۔ پھر وہ اٹھے اور اپنی الماری کی طرف گئے۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک چابیوں کا گچھا لے کر حنان کے پاس آئے۔ یہ رکھ لو بیٹا، میں تمہیں یہ گھر بہت مان سے دے رہا ہوں۔ جب تم زندگی میں کسی موڑ پر اس کو واپس کرنا چاہو تو میں تمہیں یہیں ملوں گا۔ حنان نے مسکرا کر انہیں احترام سے دیکھا تھا، پھر چابی لے کر ان کا شکریہ ادا کیا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج رات کو ہی ہم چلے جائیں گے، امی نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ تو فرحان صاحب نے مسکرا کر سر ہلایا تھا۔ وہ واپس آیا اور سلمیٰ بی کو ساری بات بتانے لگا۔ انہوں نے پہلے انکار کرنا چاہا، پھر حنان کی پوری بات سن کر کچھ دیر سوچ کر حامی بھر لی۔ پھر انہوں نے حنان سے تلقین کی کہ وہ جب کمانے لگے گا تو اپنا گھر بنائے گا۔ حنان نے اس بات کا وعدہ اپنی ماں سے کر لیا تھا۔ شام کو جب وہ سامان کے ساتھ باہر آئے تھے تو گل بھی وہیں اپنے بابا کے ساتھ بیٹھی تھی۔ اس نے جب یہ دیکھا تو حیرت سے حنان کے پاس پہنچ گئی۔ آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ حنان نے سر جھکا لیا تھا۔ وہ ایسا تب کرتا تھا جب کوئی بری خبر ہو یا جب وہ گل کو اداس نہ دیکھ سکتا ہو۔ سلمیٰ بھی نے آگے بڑھ کر گل کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ بیٹا، آپ لوگوں نے ہماری بہت مدد کی ہے اس مشکل وقت میں، اور اب وقت آ گیا ہے کہ ہم آپ لوگوں پر مزید بوجھ نہ بنیں۔ اسی لیے اللہ حافظ بیٹا، فی امان اللہ۔ انہوں نے نرمی سے کہا تھا۔ گل کے آنسو لڑک کر زمین پر گرے تھے۔ حنان نے اس کے آنسو دیکھے تھے۔ سلمیٰ اب آگے جا کر نازو بی کے ساتھ گاڑی میں سامان رکھوا رہی تھی۔ حنان نے گل کو ایسے روتا دیکھا تو وہ دکھی ہوا تھا۔ گل، تم تو میری واحد بیسٹ فرینڈ ہو، تم یہ جانتی ہو اب تم 8ویں کلاس میں بھی آ گئی ہو۔ دیکھو تو میری دوست کتنی بڑی اور سمجھدار ہو گئی ہے۔ گل نے اپنی روتی آنکھوں سے اوپر حنان کو دیکھا تو وہ اس کے سامنے گھٹنا نیچے رکھے بیٹھا تھا۔ کیا مطلب، میں پہلے بے وقوف تھی کیا؟ اس نے ابھی خفگی سے کہا۔ حنان کو اس کے شکوے پر ہنسی آئی تھی۔ اس نے بڑی مشکل سے منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنسی روکنے کی کوشش کی۔ دیکھا، آپ میرا مذاق بھی اڑا رہے ہیں۔ اب کہ حنان سنجیدہ سے اسے دیکھ رہا تھا۔ نہیں، میں نہیں اڑا رہا مذاق۔ تم میری بات دھیان سے سنو۔ تم نے اپنی پڑھائی میں خوب دل لگانا ہے اور اپنے بابا کا سر فخر سے بلند کرنا ہے۔ تم مجھے یاد کر کے نہیں روگی، ٹھیک ہے نا؟ آنسو اس کی دائیں آنکھ سے بہا تھا۔ وہ ایک بار پھر رونے لگی تھی۔ لیکن آپ مجھے پھر کبھی نہیں ملیں گے، اس نے اداسی سے کہا تھا۔ قسمت میں ہوا تو ہم ضرور ملیں گے، حنان نے اسے سمجھا کر بہت ہی نرمی سے کہا تھا۔ اب وہ اور سلمیٰ گاڑی میں بیٹھے تھے اور ڈرائیور گاڑی باہر نکال رہا تھا۔ فرحان صاحب اور ان کے ساتھ کھڑی گل اب اداسی سے ان کو ہاتھ ہلا رہی تھی۔ وہ جب چلے گئے تو فرحان صاحب اور گل اندر آ گئے۔ بابا، کیا وہ ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتے تھے؟ فرحان صاحب ٹی وی کا چینل بدل رہے تھے جب گل نے ان سے پوچھا تھا۔ بیٹا، اب تم بڑی ہو گئی ہو، تم بھی جانتی ہو کہ ایک لڑکے کا کسی لڑکی والے گھر میں ایسے بغیر کسی تعلق کے نہیں رہنا صحیح نہیں ہے۔ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا، اور پھر حنان سے میں نے وعدہ کیا تھا جب وہ کچھ کرنے کے قابل ہو جائے گا تو وہ جہاں چاہے جا سکتا ہے۔ اب وہ وقت آ چکا ہے۔ گل اب کچن سے پانی لا کر فرحان صاحب کے ٹیبل پر رکھ رہی تھی۔ شکریہ بیٹی، وہ مسکرائی تھی۔ یو آر ویلکم بابا۔ اب وہ دونوں صوفے پر بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ ایک بار پھر 4 سالوں کے بعد آج اس گھر میں گل اور فرحان صاحب تھے جیسے 4 سال پہلے ہوتے تھے۔ 4 سال بعد ہوا کے زور سے کھڑکی کے سفید پردے دائیں بائیں ہل رہے تھے۔ پرندوں کی چہچہاٹ اور سورج کی کرنوں سے بستر پر لیٹا وجود اب کچھ ہل جل کر رہا تھا۔ اتنے میں نازو بھی اندر آتی ہیں۔ بڑھاپے کے باعث اب وہ آہستہ رفتار سے چل رہی تھی۔ بی بی جی، آپ ابھی تک سو رہی ہیں؟ مگر وہ وجود ہلا تک نہیں تھا۔ گل بی بی، اٹھ جائیں، آپ کا یونیورسٹی میں پہلا دن ہے۔ آپ کے گل نے تیزی سے چادر چہرے سے ہٹائی اور ایک دم سیدھے ہو بیٹھی۔ وہ نکھری رنگت، سرمئی آنکھیں اور ہلکے گلابی ہونٹ۔ اب وہ چھوٹی گل نہیں بلکہ وہ ایک خوبصورت نوعمر سی لڑکی تھی۔ او مائی گاڈ نازو بی، آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں جگایا؟ گل بی بی، آپ کو 3 دفعہ جگانے آئی تھی میں، آپ ہر دفعہ بس 5 منٹ اور جانے کا کہہ دیتی تھی۔ گل نے اپنے تکیے کے ساتھ پڑے موبائل پر ٹائم دیکھا تو وہاں 7:45 بج رہے تھے۔ اس کی پہلی کلاس 8 بجے تھی۔ اب سے ٹھیک 15 منٹ کے بعد وہ خاصی عجلت میں اٹھی اور واش روم کی طرف بھاگی۔ پھر واپس آ کر اس نے الماری سے ایک ہینگڈ سوٹ نکالا
कपड़े बदलकर वो शीशे के सामने खड़ी अपने बालों में कंघा कर रही थी। उसके स्याह चमकीले बाल पूरी कमर तक आते थे। उसने तेजी से उन्हें दोनों कंधों पर डाला और फिर गले में दुपट्टा डाल लिया। उसने धुले हुए चेहरे पर मेकअप करने का सोचा, मगर कलाई में पहनी घड़ी पर टाइम देखा तो अब सिर्फ 5 मिनट रह गए थे। उसने अपना टोट बैग कंधे पर लिया और बाहर निकल आई। नीचे फरहान साहब बैठे चाय पी रहे थे। अस्सलाम वालेकुम बाबा। फरहान साहब ने मुस्कुराकर अपनी बेटी को देखा था। उसने आज मैरून कुर्ता ट्राउजर और गले में मैरून ही दुपट्टा डाला हुआ था। वो बहुत प्यारी लग रही थी। उसकी सफेद रंगत के साथ ही शौक रंग खिल उठते थे। वो नीचे आई तो फरहान साहब ने उसके सर पर प्यार से हाथ फेरा। वो इज्जत में जाने लगी थी जब फरहान साहब ने उसको रोका। बेटी, नाश्ता तो करती जाओ, खाली पेट रहना सेहत के लिए ठीक नहीं होता। बाबा, बहुत देर हो गई ऑलरेडी, मगर आई प्रॉमिस मैं कैंटीन से कुछ खा लूंगी। वो कहकर तेजी से बाहर निकल गई। फरहान साहब ने गहरा सांस अंदर खींचा और चाय का कप उठाए घूंट भरने लगे। वो अभी गाड़ी में बैठी थी कि उसका फोन बजा था। जिया कॉलिंग। जिया उसकी स्कूल के ज़माने से दोस्त थी। फिर वो दोनों एक साथ ही कॉलेज जाती थी। अब उन्होंने यूओपी यानी यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर में एक साथ ही दाखिला ले लिया था। उसने फ़ोन उठाया तो जिया तो जैसे फ़ोन में ही से ही उस पर बरस रही थी। गुल, तुम आ रही हो ना? ये ना हो कि मैं आज अकेली ही जाऊं और सीनियर से मेरी धुलाई हो जाए। देखो, टाइम से आना। अच्छा, मैं तो तुम्हें कह रही थी कि मेरा ड्राइवर हम दोनों को ड्रॉप कर देगा, तुम ही नहीं मानी। गुल ने उसकी बात पूरी तहम्मुल से सुनी थी। हाँ, आ रही हूँ मेरी ड्रामा क्वीन। जिया से मुख्तसर बात करके अब वो खामोशी से खिड़की से बाहर भागते दरख्तों को देख रही थी। आज मौसम काफी अच्छा था। बादलों ने सूरज का रास्ता रोक रखा था और हल्की हल्की हवा से दरख्तों के पत्ते हिल रहे थे। गाड़ी यूनिवर्सिटी के गेट पर रुकी थी। उसने बाहर निकलकर एक गहरा सांस लिया। अंदर जा ही रही थी कि एक गाड़ी गेट के पास आकर रुकी थी। वो जिया की थी। उसने गुल को देखा तो जल्दी से बाहर निकलकर उसकी तरफ बढ़ी। गुल, फाइनली तुम आ गई। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, साथ ही नर्वस भी। गुल ने मुस्कुराकर उसे देखा था। जिया एक बहुत ही सादा मगर बातूनी लड़की थी। वो जब तक अपने सारे दिल की बात नहीं कर देती थी उसको चैन नहीं आता था। अब भी वो गुल को हर एक कैफियत के बारे में ऐसे ही बता रही थी। वो दोनों अंदर आई तो वहाँ बहुत से स्टूडेंट्स मौजूद थे। कुछ ग्रुप्स में एक दूसरे से बात कर रहे थे और कुछ क्लासेस की तरफ बढ़ रहे थे। गुल को समझ ही ना आया कि उसे किस तरफ जाना था। गुल वैसे तो हर सब्जेक्ट में आ गई थी, मगर उसकी अपनी दिलचस्पी फिजिक्स में थी और बीएस फिजिक्स उसे यूओपी के कोर्सेज में उनकी वेबसाइट पर मिली तो उसने फौरन ही एडमिशन के लिए अप्लाई कर दिया। जबकि जिया एक नॉर्मल स्टूडेंट थी। उसने भी फिजिक्स का चुनाव किया था। उसको फिजिक्स के प्रोजेक्ट और मॉडल्स में हमेशा A+ मिलता था। और दूसरी बात ये थी कि गुल और उसकी दोस्ती भी इस फिजिक्स के प्रोजेक्ट की वजह से नवी जमात में हुई थी और उन दोनों का फिजिक्स रखने का बाहम फैसला था। वो फिजिक्स के डिपार्टमेंट को ढूंढ रही थी, मगर रश के बायस उसे क्लास के साथ लगी नेम प्लेट नजर ही नहीं आ रही थी। वो आगे बढ़कर लोगों के बीच से जगह बनाती आंखें। जिया ने आगे लगे नोटिस बोर्ड पर अपनी क्लास ढूंढनी चाहिए थी, जबकि गुल बाहर खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। कुछ देर बाद वो बाहर आती दिखाई दी। गुल और जिया के दरमियान एक कॉरिडोर का फैसला था। गुल कॉरिडोर छोड़कर उस तक आई थी। हाँ, मिली क्या क्लास? उसने पूछा था। जिया उसे बताने लगी थी कि गुल को अपने ऊपर पानी की फुहार बरसती महसूस हुई। अभी वो कुछ समझ नहीं पाई थी कि ये क्या हो रहा है जब जिया ने उसे अपनी तरफ खींचकर कॉरिडोर में किया था। गुल, बच के! उसने गुल को अपनी तरफ करते हुए कहा था। गुल ने जब ऊपर देखा तो एक घुंघराले बालों वाला लड़का जिसने सफेद शर्ट पहन रखी थी वहां से भाग रहा था। उसके हाथ में खाली पानी की बोतल थी। गुल को अब सारी बात समझ आई थी। गुल को उस वक्त बारिश लगी थी, मगर जब एकदम से पानी ज्यादा आया था तो उसे पता चला कोई बारिश नहीं थी, बल्कि कोई लड़का उस पर पानी गिरा रहा था। सेकंड के 1000वें हिस्से में उसने उस लड़के के नजरों से ताकुब कर लिया था। ये क्या समझता है ये मुझसे? गुलनार ज़ारा से बच सकता है? इसकी तो। गुल ने गुस्से से कहा था। यार काम डाउन, ये सीनियर होंगे हमारे। जिया ने उसे ठंडा करने की कोशिश की थी। अरे सीनियर हैं तो क्या, समझते क्या हैं ये खुद को? ये बच जाएंगे। जिया को लगा था अब तो वो लड़का गया। इस मामले में गुल शुरू से ही ऐसी थी। उससे कभी कोई पंगा लेने का नहीं सोच सकता था। जो भी गुल के साथ कोई मजाक करता है, कोई छेड़छाड़ करता, तो उसको प्रिंसिपल ऑफिस की पेशी जरूर भुगतनी पड़ती। एक दफ़ा नवीं जमात में एक लड़के ने उसे लव लेटर दिया था। उसने वो पूरी क्लास के सामने पढ़ा था और इंचार्ज मैम को पढ़कर सुनाया था। इसके बाद वो लड़का सस्पेंड होते होते बचा था। ये किस्सा पूरे स्कूल में मशहूर था और इसके बाद से किसी ने गुल को छेड़ने की जुर्रत नहीं की थी। वो अब जिया को लेती दूसरे फ्लोर की सीढ़ियाँ चढ़ रही थी। जिया उसको समझा रही थी कि आज यूनिवर्सिटी में पहला दिन है, वो ऐसा ना करे, मगर गुल
जब एक दफ़ा जो करने की ठान लेती थी उसे उससे कोई भी नहीं रोक पाता था। कुछ देर के बाद वो उस लड़के की क्लास का रास्ता रोके खड़ी थी जहाँ से वो अंदर जा रहा था। एक्सक्यूज़ मी, प्लीज़ गेट अ साइड, मुझे साइड क्लास में जाना है। उस लड़के ने ऐसे शरीफाना अंदाज में कहा जैसे अभी 1 मिनट पहले उसने कुछ किया ही ना था। गुल को उसकी एक्टिंग कमाल की लगी थी। वाह, क्या एक्टिंग कर लेते हो, गुल ने हाथ के इशारे से कहा था। क्या मतलब मैडम? अच्छा, तो आपको पता भी नहीं है कि मतलब ये मेरा बाजू देख रहे हैं आप, पूरा गीला है आपकी इस हरकत की वजह से। लड़के ने अब गर्दन के पीछे हाथ फेरा था। वो आई एम सॉरी। गुल को उसकी माफ़ी पर भी गुस्सा आया था। सॉरी मतलब पहले गिरी हुई हरकत की और फिर माफ़ी मांग ली। वाह, क्या कहने हैं आपके। वो बिल्कुल उसकी आंखों में देखती कह रही थी तो उसने गर्दन झुका ली। गुल छोड़ो उसे, लेक्चर का टाइम हो गया है, जिया ने आहिस्ता से गुल को कहा था, मगर वो तो अपनी जगह से टस से मस नहीं हुई थी। ऐसे कैसे छोड़ दूं इसे, पहले पूरी बात तो कर लूं। जिया से कहने के बाद वो एक बार फिर उसकी तरफ मुतवज्जा हुई थी। मिस्टर, अपना क्लास डिपार्टमेंट सब बताओ, तुम्हारे पास 30 सेकेंड है। लड़के ने बौखला कर उसे देखा था। क्या वो उसकी रिपोर्ट करने वाली थी? जल्दी करो, 10 सेकेंड हो चुके हैं ऑलरेडी। लड़के ने अपनी घड़ी को देखा था। वो वाकई संजीदा थी, उसने 30 सेकेंड ही दिए थे। वो मेरा नाम कैफुर रहमान है, 5th सेमेस्टर से IT। गुल ने चिताती नजरों से जिया को देखा। नाम तो बड़ा शायराना है, गुल ने हंसी दबाकर कहा। नहीं, वो तो ऐसे ही बस, वैसे आप मुझे कैफी भी बुला सकती हैं। गुल की हंसी हवा हुई थी। मिस्टर कैफुर रहमान, मैं यहाँ आपके साथ दोस्तियाँ बढ़ाने नहीं आई हूँ, बल्कि बताने आई हूँ कि आइंदा ऐसी कोई हरकत ना हो, समझे? उसने रुखाई से कहा, फिर जिया को लेकर वापस नीचे चली गई। हाँ, तो क्लास कहाँ है हमारी? उसने अब थके हुए लहजे में जिया से पूछा था। तुम्हें इतनी देर से यही बता रही थी कि हमारी क्लास भी 2nd फ्लोर पर है, उसने कहा था। क्या? हमारा तो अलग डिपार्टमेंट नहीं है? जिया ने उसे देखा था जैसे कह रही हो सीरियसली। यार, आज तो और ही टेंशन, आज तो इंट्रोडक्शन क्लास है ना, सबके ऊपर ही है, फिर कल से हमारी क्लास अपने डिपार्टमेंट में लगेगी। गुल ने समझते हुए सर हिलाया था। ओह हाँ, चलो फिर, एक तो इतना सारा चलना पड़ता है तो मुझे पहले ही नहीं बता सकती थी। जिया ने कनखियों से उसे आगे जाते हुए देखा था। वो उस लड़की का क्या करे, वो जब गुस्से में होती तो किसी की एक नहीं सुनती थी, और फिर जब गुस्सा ठंडा होता है बिल्कुल झाग की तरह बैठ जाती है। उसका समझना भी हर किसी के बस की बात नहीं थी। जब इतने अरसे से जिया उसके साथ रहकर उसे समझ नहीं पाई थी तो किसी और को कैसे समझ आती। वो लोग अब अपनी क्लास में पहुंच चुके थे। वो एक ऑडिटोरियम था और वहाँ तकरीबन 100 स्टूडेंट्स थे। जिया, यहाँ तो बहुत से स्टूडेंट्स आ चुके हैं, उसने जिया को ऑडिटोरियम में दाखिल होते हुए सरगोशी में कहा था। हाँ ना, हम लेट हो गए हैं, पर शुक्र है कि अभी टीचर नहीं आए। कुछ देर बाद लेक्चर हो गया तो गुल ने फ़ोन पर टाइम देखा था। यार जिया, अब कोई क्लास नहीं है ना? जिया ने बैग उठाते हुए उसे देखा था। नहीं, आज बस ओरिएंटेशन क्लास थी। गुल ने गहरा सांस लिया था। थैंक गॉड, फिर कैफे चलते हैं, सुबह से पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। जिया ने मतलब तेज नज़रों से उसे देखा था। क्या हुआ है, अब तुम ऐसे क्यों देख रही हो? गुल ने उकताकर उसे देखा। मैं सोच रही हूँ, सुबह को खाली पेट भी तुमने उस बेचारे सैफुर रहमान की अच्छी खासी धुलाई कर दी थी, कुछ खा कर आती तो उस बेचारे का क्या होता? गुल ने जोर से कहका लगाया। कैफुर रहमान उसका नाम, क्यों इसका शायराना नाम का मजाक उड़ा रही हो? गुल ने हंसकर कहा था। ओ हाँ, कैफ और प्यार से कैफी, जिया ने उसकी नकल करते हुए कहा। वो दोनों अब हंस हंसकर लौट पौट हो रही थी। कुछ देर बाद वो अब कैफे के काउंटर पर शीशे के पार पड़े रोल, समोसे से मिनी पिज़्ज़ा और बाकी अशिया को देखकर इंतखाब कर रही थी।